Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of my listeners. I appreciate the endeavor of the office bearers of the Association of Protection of Civil Rights for organizing talk on two burning topics of the day: democracy on halt, dissent is in detention, and media and police prejudice against Muslims during lockdown. APCR is grateful to our key speakers who have spent much valued time in delivering talks on the subject. We are fortunate to have Professor Ram Punyani, who is a frontline social activist in upholding values of secularism and defending human rights. He is a great mujahid, fighting for justice for the downtrodden and marginalized people. We welcome Professor Punyani. We also have amongst us public-spirited and a well-known lawyer from Nagpur, Janab Firdaus Mirza, practicing before the Nagpur bench of the Bombay High Court. He is a public-spirited person and is acquainted with the ground realities relating to the manner in which the people at the ground suffer because of the media and the police prejudice. APCR stands for protection of the human rights not only of Muslims but all the marginalized sections of the society like Adivasis, Dalits, women, and of course the Muslims and Christians and other religious minorities. The late Justice K.K. Mathew, the former judge of the Supreme Court, has observed the problem of justice is central problem of politics. He quoted the well-known US public intellectual Reinhold Niebuhr. Niebuhr said that a man's capacities for justice makes democracy possible, but man's inclination for injustice makes democracy necessary. When our constitution was formed, we had the Constituent Assembly, which comprised of the people with vision, and they were drawn from the different walks of life and a different cultural, educational background. They had capacity for justice, and that made the democracy possible in our country. They made they created the document that our constitution establishing the republican secular state infused with the values of justice, freedom, equality, and fraternity. But with the passage of time, our country saw a lot of political upheavals, and we had the brief period of emergency, which is a blot on our democracy. It was a bad times for our country, but these bad times, fortunately, did not last long. The authority responsible for imposing emergency had sagacity to hold free and fair elections, and in those elections the Congress, which has imposed emergency, was roundly defeated, and the era of justice and democracy returned to our country. Then, in the 8th decade of the last century, the country had also
shown the digression from the path of rectitude, and we have seen that there were casteist sentiments upsurging when the Mandal Commission was sought to be implemented. To counter the civil turmoil and the civil strife that occurred in the country because of the implementations of the Mandal Commission, another movement was started to start the construction of the Ram Mandir and injecting into the body politics the poison of communalism. Unfortunately, the country thereafter has not emerged out of this casteist and the communal sentiments that has gripped the minds of the people. This has led to the erosion of the basic values on which our constitution and our republican state is based. It has eroded the preambular value of justice, freedom, and fraternity, and more importantly, the fraternity. I am reminded of what Dr. Ambedkar has said, that one can fight for justice, one can fight for equality, one can fight for freedom, but can anyone fight for fraternity? The fraternity has to be cultivated, and that for that a real atmosphere is to be created at the ground level, where the people help each other in the feeling of brotherhood, so that we in India live as one nation, though following the diverse cultures, having diverse languages, and having the diverse religions. Dr. Ambedkar has also said that I feel, however, a great constitution may be, it is true to turn out bad because those who are called to work it happened to be bad lot. He further observed, it is quite possible to pervert the constitution without changing it. The process of perverting the constitution started from the middle of the 8th decade of the last century. Then we come to the present millennium, and when we come to the present millennium, there were certain brief periods where there was a moment where attempts were made to empower the citizenry by giving them the Right to Information Act and also making the right to education as a fundamental right. Now, what happens thereafter is this, that after 2014, these values of democracy and a republican spirit is further diluted by the people who are in power and authority, because in last 6 to 7 years we have seen that there has been a systematic attempt to undermine all the democratic institutions like election commission, controller of an accountant general's office, the law enforcement agencies, and also the unfortunately even judiciary. And that has brought all our preamble values into great distress. Diverse coercive means are adopted to silence dissent, and means are adopted
of slapping charges of sedition on people who showed the courage to speak truth to the power, falsely implicating social activists and NGOs who fight for the rights of the downtrodden and raise their voice against injustice, adopting coercive processes through enforcement directorate and bringing raids on specious grounds and abusing power of preventive arrest under the draconian laws like UAPA. Largely the political opponents are made the victims, and the dissent, put in only one word, is silence. Not merely silence, but the dissent is also criminalized. When the people who indulge into these activities are confronted with questions, they justify all these coercive methods on the ground that they have won the elections and they have got the majority in the parliament, and therefore they represent the will of the people. Now it is here I would like to quote Aristotle when he spoke about the Greek constitutional history, and he said that in old times, whenever the same man became the leader of the people and general, they used to change the constitution to tyranny. For days have arisen from being leaders of the people. It is therefore not surprising that in India we have also democratically elected a dictator. We did it in the past, and we saw a black spot or a black spot on our democracy in the form of emergency. We are therefore now in a phase where men who will power brazenly show their inclination towards injustice. It is therefore in the present time democracy becomes necessary. And how do we make this democracy a vibrant and really a functional democracy? The main the precondition to have a vibrant democracy, to have the dissent. The dissent is the heart of democracy. Now, how can we make a citizenry effectively asking questions to the people in power? To enable the citizenry to do that, they must have access to the basic qualitative education. Political economy of our country has seen to it that this basic need to create critical mind is denied to the large section of our population. In 1958, we had the Kothari Commission, which recommended that the 6% of the GDP should be spent on education. From 1958 till middle of the 8th decade, no government in its annual budget has ever reached the target of allocating 6% of the GDP for education. The budgetary allocation has remained always below 1.50% of GDP. Then in 1985, new education policy was announced and repeated that there should be 6% of GDP allocated for education. But the same target was never achieved. On the contrary, from 2012 onwards, the budgetary allocation for education is progressively reduced, and the latest budgetary allocation for education is 0.6%. In the name of liberalizing economy, the state has gradually withdrawn from the concept of welfare state, and to mete out
social justice to citizens, which is one of the basic values mentioned in the preamble of the Constitution. The result is that the government and semi-government schools throughout the country are in pathetic conditions and provide a very bad quality of education. It's on record that so far the teachers are concerned in such schools, 1 out of 4 is absent, 1 in 2 is not teaching, only 10% of the teachers employed in such schools pass teachers' ability test. No remedial measures are taken to improve quality of education in government and municipal schools, though there is upsurge in aspirations of the people, and the parents do look forward to provide good quality education to their wards, and children have shifted their children from public schools to private schools, leading towards the commercialization of education. This privatization of education has also given rise to the another evil of profiteering through education. Now, very recently, we have got a new educational policy, which is known as National Educational Policy. And one of the aims is to develop critical thinking amongst the students. Very noble objective. But the same ideal was also stated in the earlier vision documents of 1958 and 1985. The question is that though we have conceived this vision for last so many years, we have not been able to achieve the same. The problem is that even in our new education policy, in a very glowing terms, the high ideals are set out. They are welcome, but there is no road map suggested as to how to achieve those ideals. There is no assessment of the causes as to why we have not been able to achieve these targets. To mention the ideals without suggesting the road map to achieve those ideals just makes them to be proclamations containing merely the platitudes. To create dissent, what is required is the political maturity and the traditions of the people that import meaning to a constitution. Merely repeating platitudes cannot create dissent, and the dissent is not now. If the same process is continued, the dissent is not merely in detention, but is permanently locked down. Coming to the question of the media and the police biases, we live in very sad times. The key speakers today will definitely mention many anecdotes showing the media and the police prejudice, which I will not like to repeat here, because the incidents which are reported in the public domain are too many, and we in the legal field we have got a maxim which says that re ipsa loquitur, means the facts speak for themselves. There are several reports given by the National Commission for Police. In one of the reports, it is clearly stated that our police force is not free from a casteist and communal prejudice. This is the objective observation and frank admission by the Commission. Not only that, but the number of inquiry reports relating to communal disturbances in the country have frequently pointed out
to the communal bias of the law enforcement agency in preventing and controlling communal riots, particularly Hindu-Muslim riots. In spite of that, no corrective measures have been taken, and there is a tendency to resort to the draconian laws. First it was TADA, then it was converted into POTA, then it is converted into UAPA, which ultimately means that the person who is charged with an offense is denied the fair trial to defend himself. To have a fair trial is also an acknowledged human right, which is denied to most of the people who are suffering under in detention because the charges are slapped under the draconian laws. And generally the victims are the religious minorities, Dalits, Adivasis, and also at times even the women. Now when the question of the police torture when a person is in the custody is also romanticized and even glorified by our pop culture, that is the cinematographic films and the TV serials. The cinematographic films create the character of cops who openly advocate that the only way to mete out justice, to remove the evil from the society, is to do the swift justice by eliminating the person, by killing him without having recourse to the due course of law. And it is justified that the persons who are having the bad character have all the influences to evade the consequences of his action, and therefore they are justified in killing the person. Thus, the police becomes the accuser, the police becomes the judge, and the police also becomes the executioner of the of their own decision or of their own bias of considering a particular person as being guilty. And then we have also seen that there was an incident that occurred very recently where one Mr. Jay and his son Benix were killed in police custody in one of the districts of Tamil Nadu, but they did not create any kind of a national movement for anger against such unjustified killing of a father and son who were charged with a very minor offense of committing breaches of certain rules. Justice with what happened in United States, where one George Floyd, an African American, who was killed while making the arrest, and while dying, the man said, kept on repeating that I can't breathe, I can't breathe. Yet the police officers brutally killed him by arresting him. Now this incident, one person died and the whole nation rose as one nation in protest against it. And not merely this United States, but it was noted by many of the European democracies, and the protests were held against this. In our country, we have accepted this with some kind of acceptance. And though there was some protest in Tamil Nadu to begin with, but it also subsided. Now it is our duty to rise and create awareness against perils which threaten our Republican Constitution and the ideals on which it is based. Let us assert our right
to breathe freely. Thank you all. दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बोलने वाला हूँ उस विषय का प्रभाव हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन पर बहुत गहरा रहता है और वो विषय है पुलिस और मीडिया के बीच में अल्पसंख्यकों के खिलाफ के बायसेस, प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह इत्यादि, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। इसका मैं एक उदाहरण जो शुरू करूँगा वो अभी कोविड-19 के उदाहरण से शुरू करूँगा। आपको याद होगा कि जब कोविड चालू हुआ तो उसके बाद करीब मार्च 20 को पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया और मार्च 24 को 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन किया गया। और इसी बीच मीडिया ने एक ज़बरदस्त नफरत की कैंपेन फैलाई। वो कैंपेन थी कि 13 से 15 मार्च तक जो दिल्ली में तबलीगी जमात की सेमिनार हुई थी, उस सेमिनार के कारण, उसमें जो लोग आए थे उनके कारण ये कोरोना फैला है। अब उन्होंने बहुत खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल किया, कोरोना जिहाद, कोरोना बॉम्ब, ये सब का इस्तेमाल। ये सोची समझी साजिश है। एक प्लानिंग के तहत पूरे देश में कोरोना फैलाने की ये साजिश तबलीगी जमात की है। तबलीगी जमात को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो एक आम बात हो गई कि मुसलमान भारत को एक तरह से नुकसान देना चाहते हैं। अब इसकी जब सच्चाई, थोड़ी सी भी हम सच्चाई जानना चाहें तो पता चल जाएगा कि दिसंबर के अंत में, दिसंबर 2019 के अंत में, इसीलिए आपको कोविड-19 कहा जाता है, कोविड 2020 नहीं कहते हैं। तो दिसंबर 2019 में वुहान में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद वुहान से बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो केरल में पढ़ते हैं वो केरल में आए और उनमें से कई लोग अपने साथ कोरोना लाए। अब ये ख्याल कीजिएगा कि कोरोना सबसे पहले जो शुरू हुआ वो केरल में हुआ। अब लगे हाथ ये भी बता दूं कि कोरोना का सबसे अच्छा जो मैनेजमेंट इंडिया में हुआ वो भारत में ही हुआ, वो केरल में हुआ। और केरल का उदाहरण इतना अच्छा है कि पूरे देश, पूरी दुनिया के लोगों ने केरल की सरकार को इसके लिए सराहा। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मुख्य बात यह है कि उसके बाद फिर यहाँ फरवरी महीने में बहुत सारी घटनाएं हुई। एक छोटी सी घटना है जिस व्यक्ति को लोग मजाक के रूप में लेते हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी को क्यों ला रहा हूँ बीच में? क्योंकि 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार को निवेदन किया कि कोरोना का खतरा बहुत भयंकर है, आप इस पे काम कीजिए। सरकार ने इसको मजाक में उड़ा लिया क्योंकि उस समय सरकार काफ़ी व्यस्त थी, कायमी व्यस्त थी। एक तो वो दुनिया के बादशाह जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अहमदाबाद आने वाले थे नमस्ते ट्रंप नाम के इवेंट पे, इसके लिए वो बिजी थे। दूसरा, मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त चल के मध्य प्रदेश में सरकार का तख्ता बदलने में व्यस्त थी। और जब इन बातों से वो उभरी तब तक कोरोना काफ़ी फैल चुका था। आपको जानकारी दे दूँ, तबलीगी जमात के इन लोगों के आने के पहले, और ये तबलीगी जमात की मीटिंग पूरी सरकार की परमिशन के साथ हुई। जो लोग भी आए वीसा लेकर आए, जो बाहर के लोग आए पूरा वीसा लेकर आए, एयरपोर्ट से आए, और एयरपोर्ट में उसमें क्या हाल था आप ही जानते हैं। उसके पहले, इन लोगों के पहले, एक कनिका कपूर नाम की बहुत मशहूर सिंगर हैं, वो भी विदेशों से आई और वो यहाँ के हजारों लोगों में घुली मिली। एक सिख ग्रंथी साहब प्रचारक, वो भी तबलीगी जमात की मीटिंग के पहले आए और देश के कई जगहों पर उन्होंने इन चीज़ों का संबोधन किया। तो देखिए कि एक तरफ सिख ग्रंथी आते हैं, कनिका कपूर आती है, केरल के मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं, और ख़ास तौर से सबसे बड़ा जो जमावड़ा होता है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस कोरोना के काल में 2 लाख लोग इस मीटिंग में संपर्क में आए, और इसके बावजूद जो हाईलाइट किया गया तबलीगी जमात को, और तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को। तो ये जो प्रेजुडिस ये फैला, ये मीडिया का एक तबका जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं,
जो कई कॉरपोरेट हाउसेस के कंट्रोल में है, ये एक बहुत खतरनाक उदाहरण हमारे सामने है कि कैसा ये हमेशा मौका देखते रहते हैं कि कैसे अल्पसंख्यक समुदाय को किसी न किसी बहाने बदनाम किया जाए। और इसी के बहुत सारे उदाहरण हमको हमारे समाज में लगातार मिलते हैं। दूसरा, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, हमारी पुलिस व्यवस्था में जो जिस प्रकार के पूर्वाग्रह हैं उसका एक मैं सैंपल देना चाहता हूँ। हमारा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की तरफ से हम पहले पुलिस के बीच में बहुत सारी कार्यशालाएं करते थे और उन कार्यशालाओं के दौरान हम पुलिस के ऑफिसर से पूछते थे कि आप मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। तो ज़्यादातर जवाब आते हैं थे कि वो आतंकवादी हैं, वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वो पाकिस्तान परस्त हैं, वो उनके परिवार बड़े होते हैं, मुसलमान राजाओं ने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। ये सब पूर्वाग्रह पुलिस के बीच में मौजूद है। और अभी देखिए, इसी शाहीन बाग नहीं, शाहीन बाग तो इसी के कारण ख़त्म हुआ। कोरोना के कारण शाहीन बाग कमज़ोर हो गया और थोड़ा बिखर गया। इसके बाद भी जो दिल्ली में दंगे करवाए गए, याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा दंगे हुए, क्योंकि दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। इन दंगों में करीब 50 के करीब लोग मारे गए और उसमें मरने वालों में 38 मुसलमान थे। और इसका जो प्रचार किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो ये किया जा रहा है कि हिंदू समाज पर ये एक आक्रमण था और ये एक अल्पसंख्यक समुदाय ने जानबूझकर यहाँ के हिंदू समुदाय को कष्ट देने के लिए ये किया है। तो ज़्यादातर जो FIRs, जो केसेस डाले गए हैं, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं और ख़ासतर वो अल्पसंख्यक जो विद्यार्थी थे, कुछ लड़कियाँ और लड़के, जिन्होंने CAA विरोधी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उनके खिलाफ ज़्यादातर मुकदमे लगाए गए। अब ये काफ़ी समझने की बात है कि एक तरफ दंगे हुए, ज़्यादा संपत्ति का नुकसान मुसलमानों का हुआ, जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा मारे गए, और इसको मीडिया के एक तबके ने हिंदू विरोधी दंगे के रूप में प्रस्तुत किया। तो एक तरफ पुलिस है, एक तरफ मीडिया है, ये दो एक बहुत सशक्त माध्यम हैं जिनके माध्यम से लोगों के राय को, लोगों की ओपिनियन को, लोगों के सोच को, लोगों की समझ को बनाया जाता है। और ये आज जो मैं घटनाएं बता रहा हूँ, ये तो अभी हुई है, पर इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। और उस लंबे इतिहास में यहाँ जो मुख्य रूप से तो ये है कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति के विकास के बाद जो बातों को प्रचलित किया गया, जो बातों को फैलाया गया, वो बातें ज़्यादातर उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू बनाम मुसलमान के इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया। मैं इस बात की जड़ पे जानना चाहता हूँ कि मीडिया आज पिछले कुछ सालों से इसको ज़्यादा तेजी से ले रहा है। पुलिस में लगातार एक सांप्रदायिकीकरण की प्रक्रिया चालू है और पुलिस के सांप्रदायिकीकरण की प्रक्रिया हमने बम्बई के दंगों में 1992-93 में देखी, जब पुलिस का जो रवैया था उससे भी क्लियर हो गया, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में भी आ गया। उसके बाद 2002 में गुजरात के दंगों में भी हमें यही बात देखने आई कि पुलिस का माइंडसेट, सोचने का तरीका ज़्यादातर मुस्लिम विरोधी होता है। तो खैर, ये जो भारत में आज अल्पसंख्यक हैं, उसमें मैं एक और बात भी जोड़ देता हूँ और वो बात है क्रिश्चियन विरोधी। अब क्रिश्चियन विरोधी जो प्रोपेगेंडा है वो छोटा है, पर है, ये भी है। और इसी के चलते 1999 में पैस्टर ग्राहम स्टेवर्ट स्टेन्स की हत्या की गई। 2008 में कंधमाल का बहुत बड़ा वायलेंस हुआ यहाँ के ईसाई समाज के खिलाफ। अब इनके कारणों में जाने की मीमांसा समझने के पहले मैं बता दूं कि भारत में खास तौर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नफरत का माहौल बनाया गया है, वो इन्हीं गैर समझ, मिथक, प्रेजुडिसेस, बायसेस, स्टीरियोटाइप्स के आधार पर बना है। तो इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ वास्तव में भारत को देखिए तो भारत एक ऐसा देश रहा है
जहाँ सभी धर्मों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये दो मुख्य स्रोतों से बता रहा हूँ। एक है महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज, जिसमें गांधी जी लिखते हैं कि यहाँ मुसलमान राजाओं का भी राज था, हिंदू राजाओं का भी राज था। हिंदू राजा के राज में मुस्लिम प्रजा रहती थी, मुस्लिम राजा के राज में हिंदू प्रजा रहती थी। और मुस्लिम राजा हिंदू राजा आपस में मिलजुल कर राज भी करते थे, मिलजुल कर राज भी करते थे, और उनके बीच में सत्ता के लिए संघर्ष भी होते थे। ये गांधी जी हमें बताते हैं। और उस समय समाज की जो हालत थी उसका ज़्यादा जोर पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मिलता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माता, ये हमें बताते हैं कि यहाँ के समाज में मेल जोल की परंपरा थी। हिंदू मुसलमान में खास तौर से उत्तर भारत में ये परंपरा बहुत है, पर पूरे भारत में अलग अलग धर्मों के बीच में आदान प्रदान, मेल जोल, प्रेम मोहब्बत, ये यहाँ का एक मुख्य चरित्र रहा है। और इसके लिए नेहरू जी ने एक शब्द दिया था, गंगा जमुनी तहजीब। और ये गंगा, इसको मैं लगे हाथ आपको बता दूं कि पंडित नेहरू की किताब पर एक बहुत अच्छा सीरियल बना है, भारत एक खोज, श्याम बेनेगल का है, बहुत बेहतरीन है। इससे देखकर हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला के बारे में बहुत सोच सकते हैं। तो जब भारत में इस प्रकार से मिलजुल कर लोग रहते थे, और ये मेलजोल का उच्चतम बिंदु अगर आप देखें तो भारत की दो परंपराओं में मिलता है, और ये दोनों परंपराएं धार्मिक परंपराएं हैं। एक परंपरा है भक्ति परंपरा, जो हिंदू धर्म की छतरी से आती है, और भक्ति संतों को मानने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। भक्ति संतों को मानने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ऐसे ही इस्लाम की छतरी से जो आता है सूफी परंपरा, सूफी परंपरा को भी मानने वाले हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, और इसी आधार पे भारतीय समाज बना। तो फिर इसमें भेदभाव कैसे लाया गया? दोस्तों, भारत के समाज में बंटवारा करने के लिए जो इतिहास को यहाँ लाया गया, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और याद रखिए, ये शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद। वैसे तो इसका बहुत लंबा इतिहास है, पर मोटे तौर पर मैं बताऊंगा, अगर हमें इसे आसानी से समझना है तो ख़ास तौर से 1857 की क्रांति, लड़ाई, संघर्ष से हमें इसकी बात की शुरुआत करना पड़ेगा। आपको याद होगा 1857 का जो विद्रोह था, उसकी चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई थी, और इस लड़ाई का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। यानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता हिल गई। तब उन्होंने फैसला किया कि अगर भारत पर राज्य करना है तो हमें फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाना पड़ेगा। और इस नीति को अपनाने के लिए उन्होंने इतिहास में राजा जो सत्ता के लिए राज्य करते थे, संपत्ति के लिए राज्य करते थे, राज्य विस्तार के लिए राज्य करते थे, उनको उनके धर्म से जोड़ दिया। और यहीं से एक सांप्रदायिक इतिहास लेखन की शुरुआत होती है। और ये सांप्रदायिक इतिहास लेखन जो मुसलमान राजाओं के काम थे, उनको आज के मुसलमानों पर डाल दिया गया। वैसे तो जो भी राजा उस समय हुए, उन्होंने अपनी नीतियों से काम किया। राजाओं में अच्छे भी थे, खराब भी थे, पर राजाशाही की व्यवस्था गरीब किसान के शोषण पर आधारित थी। तो जब हम हिंदू मुसलमान के इतिहास आधार पर इतिहास देखते हैं, तो इतिहास का जो मूल तत्व है उसको हम भूल जाते हैं कि गरीब किसान के शोषण के आधार पर टिकी हुई राज्य व्यवस्था थी। अब जहां हम आज जो प्रचलित इतिहास देखते हैं, उसमें हिंदू बनाम मुस्लिम का किया जाता है। भारत में मुसलमानों को खराब, आक्रामक बताया जाता है। पाकिस्तान में इसके उलट मुसलमान राजाओं को सबसे महान बताया जाता है, और हिंदू राजाओं को कायर या जिनकी कोई सत्ता नहीं थी ऐसा बताया जाता है। पर वास्तव में ये इतिहास को देखने के तरीके के एक दूसरा तरीका भी है, और जो दूसरा तरीका है वो है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का।
भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में इतिहास का मुख्य अंतर्द्वंद जो है वो बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद में है। बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का अंतर्विरोध, यानी यहाँ की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसको बनाए रखने के लिए ब्राह्मणवाद ने जो संघर्ष किए, और उसके विरोध में बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत आए समतावादी, इन दो के बीच में ये संघर्ष है। तो अब जब ये इस प्रकार का इतिहास आया तो बाद में चलकर सांप्रदायिक संगठनों ने, जैसे मुस्लिम लीग के विचारकों ने इसको लेकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई। उन्होंने ऐसी बातों को पकड़ा जिससे हिंदू बदनाम हो, और इस तरफ से हिंदू महासभा, आरएसएस, हिंदू सांप्रदायिक संगठनों ने जो मानते हैं कि हिंदुओं का राष्ट्र है, मुसलमान यहाँ विदेशी है, क्रिश्चियन यहाँ विदेशी है, वो लोगों ने इस बात को ऐसा टर्न दिया कि जैसे यहाँ पहले सब कुछ अच्छा था, जाति व्यवस्था की बराबरी थी, स्त्रियों को देवी माना जाता था, और यहाँ जो समस्या हुई वो मुसलमानों के और बाद में अंग्रेजों के आने के कारण हुई। इस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, पर उसमें इन्होंने मुसलमानों के बारे में जो अंग्रेजों ने नींव डाली उसको और विस्तृत किया और बढ़ाया, और दो चीज़ों को खास तौर से पकड़ा। एक कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। अब दूसरा कि मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर आए, और उन्होंने लोगों पर जबरदस्ती से इस्लाम को थोप दिया। और वास्तव में ये दोनों बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर हम विस्तार में देखें तो मैं एक उदाहरण खास तौर से या दो उदाहरण दूंगा जिससे ये सिद्ध करूंगा कि हिंदू राजाओं ने मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े। मुसलमान राजाओं ने मंदिर भी तोड़े, मंदिरों को दान भी दिया, मस्जिदें भी तोड़ी, मस्जिदों को दान भी दिया। यानी चुनकर कुछ चीज़ों को पकड़ लिया गया और उसको राजा के राज्य से जोड़ दिया गया। जैसे भारत में होने वाले राजाओं में औरंगजेब को सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी माना जाता है। उसने काशी में विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, ये बात प्रचलित की जाती है, पर ये बात हमसे छुपाई जाती है कि इसी औरंगजेब ने कई सारे हिंदू मंदिरों को दान दिया। और आज तो आपको ये बात जरूर याद रहेगी क्योंकि अभी अभी वो कौन थे, यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे, उन्होंने सरेंडर किया या पकड़े गए। कहाँ पकड़े गए? उज्जैन में। कौन से मंदिर के पास पकड़े गए? महाकालेश्वर, महाकाल के मंदिर। तो एक किताब है डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की जिसमें वो बताते हैं कि कितने हिंदू मंदिरों को उन्होंने दान दिया। उसमें एक मंदिर था उज्जैन का महाकाल का मंदिर जिसका मैं उल्लेख कर रहा था। उसी के साथ साथ दो तीन और मंदिरों का आपको बता दूं। एक मंदिर जो गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिरों को औरंगजेब ने दान भी दिए, पर हमारे दिमाग में क्या रहता है, उसने विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। इसी औरंगजेब ने एक बार गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़वाया। क्यों तोड़वाया भाई? क्योंकि मस्जिद में के नीचे एक कुछ खजाना गाड़ के रखा था। किसने गाड़ के रखा था? जो वहां का राजा था तानाशाह, उसने 3 साल तक औरंगजेब को लगान नहीं दिया और वहां उसने अपनी संपत्ति को गाड़ के रखा। इसको निकालने के लिए औरंगजेब ने ये भी तोड़वाया। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, कई हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। नंबर 1 संपत्ति के लिए, नंबर 2 सत्ता के लिए। 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे जिनका नाम था राजा हर्षदेव। उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करवाया जिसका काम यही था कि वो मंदिरों में जाकर सोने चांदी की मूर्तियां, हीरे जवाहरात से जड़ी मूर्तियों को ले आए। तो खैर पूरा अगर चित्र हम देखेंगे तो एक अलग बात निकलती है, चुनकर कुछ घटनाओं के आधार पर देखेंगे तो दूसरी बात निकलती है। ऐसे ही भारत में इस्लाम के प्रसार की बात देखिए। अब कहा जाता है मुसलमान राजाओं ने तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाया, यानी मुस्लिम आक्रामक होते हैं, मुसलमान राजा आक्रामक थे, मुस्लिम लोग वायलेंट होते हैं, ये उससे जुड़ जाता है। पर इसमें सच्चाई ये है कि भारत में इस्लाम जो आया वो 7वीं शताब्दी में ही आया। कैसे आया? केरल के मलाबार तट पर अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहाँ का माल यहाँ बेचते थे, यहाँ की
माल वहाँ ले जाते थे। और इसी की स्मृति में एक मस्जिद वहाँ बनी 7वीं-8वीं शताब्दी में, जिसका नाम है चेरामन जुमा मॉस्क। और जहाँ तक इस्लाम के प्रसार का सवाल है, स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं खंड 3 में जो 1979 में पब्लिश हुई थी, उसमें बताते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के वर्ण व्यवस्था से पीड़ित लोगों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो ये दो बातें जो मैं मुख्य रूप से लेता हूँ, इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ गई कि भाई मुसलमानों के परिवार बहुत बड़े होते हैं, उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो हिंदुओं से बढ़ जाएंगे। तो आपको बता दूं कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके आसपास मुसलमानों का परसेंटेज था 12.6, 12.6। 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये है 14.2। मुसलमानों में कुछ जनसंख्या की वृद्धि हुई और कुछ जनसंख्या की वृद्धि हुई आदिवासियों में। आज़ादी के समय जो आदिवासी और दलितों का परसेंटेज था, उसमें भी करीब 1-1.5% की वृद्धि हुई। तो इसका क्या चीज़ सामान्य है मुसलमानों में, दलितों में, आदिवासियों में? वो है गरीबी, अशिक्षा। जहाँ भी गरीबी और अशिक्षा ज़्यादा होती है, वहाँ बच्चों की संख्या परिवार में ज़्यादा होती है। और आपको ये भी बता दूँ, अभी जो नए ट्रेंड आ रहे हैं, नया तरीका आ रहा है, उसमें ये बात क्लियर है कि मुस्लिम समाज में भी जो लोग पढ़ते लिखते हैं, जो लोग जिनके पास साधन होते हैं, उनके परिवार भी अभी छोटे होते जा रहे हैं। परिवार नियोजन की चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ऐसा लोगों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग किया है कि मुसलमानों की जनसंख्या 2070 तक 18% तक जाकर स्टेबल हो जाएगी। तो खैर, ये जनसंख्या का भी सवाल ज़्यादा गरीबी से जुड़ा है। खैर, अब ये पूर्वाग्रह थे। ऊपर से 2006 और 8 के बीच में बहुत जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए। मक्का मस्जिद, मालेगांव, अजमेर और समझौता ब्लास्ट। और इन सब का दोष भी मुस्लिम नौजवानों पर डाला गया, क्योंकि उस समय दुनिया के मीडिया में एक बात प्रचलित थी कि वो शब्द था इस्लामिक टेररिज्म। ये इस्लामिक टेररिज्म शब्द कैसे आया? इस्लामिक टेररिज्म शब्द आया 9/11/2001 के बाद, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ। उसके बाद इसको दोष ओसामा बिन लादेन, अलकायदा पर दिया गया। और खैर, उसके विस्तार में नहीं जाके मैं इतना बताना चाहता हूँ, अमेरिकन मीडिया ने एक शब्द पॉपुलर कराया, वो था इस्लामिक टेररिज्म, यानी इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया। याद रखिए दोस्तों, जैसे बाकी सभी धर्म शांति का प्रचार करते हैं, इस्लाम भी शांति का प्रचार करता है। और इस्लाम में एक आयत है, सूरा 5 आयत 32 कहती है, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो ये पूरी इंसानियत को मारने के समान है। ये जो अलकायदा को खड़ा किया गया, वो अमेरिका ने किया था। क्यों? क्योंकि उस एरिया पे तेल के कुओं पर कब्जे जमाने का उनका जो उद्देश्य था, उसके चलते वो हुआ। और उसके कारण भारत की राजनीति में भी ये प्रभाव हुआ। तो मीडिया में जो घुसपैठ हुई, सांप्रदायिक तत्व जो आए, वो ये सोच लेकर आए। और ज़्यादातर जो गरीब लोग, उसमें दूसरी बात यह है कि सांप्रदायिक दंगे भारत में लगातार होते रहे। और सांप्रदायिक दंगों के कारण आप डॉक्टर विभूति नारायण राय का रिसर्च हमको बताता है कि ज़्यादातर सांप्रदायिक दंगों में मारे जाने वालों में 80% मुसलमान होते हैं। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या करीब 13-14% और मरने वालों में 80%। और ये बात अभी दिल्ली के दंगों में फिर से साबित हो गई। और उसका परिणाम हमें जो देखने को मिलता है कि जो कमज़ोर गरीब मुसलमान हैं, वो सुरक्षा के लिए एक ही एरिया में जाने को चाहते हैं। जैसे अहमदाबाद में जूहापुरा हो गया, बम्बई में मुंद्रा, जोगेश्वरी, भेंडी बाजार हो गया। तो उस एक सीमितीकरण, गेटोइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसके कारण उनमें कुछ जो प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, वो प्रवृत्तियों को मीडिया उसकी गहराई तक गए बगैर ऊपरी तौर पर लगा देती है। और इसीलिए आजकल तो मीडिया में और भी खतरनाक देखने को मिलता है कि टीवी चैनल्स पर
जो गोदी मीडिया के लोग हैं, कुछ खास मौलाना को बुला देते हैं जो उत्तेजनापूर्ण बयान देते हैं जिन बयानों में कोई सच्चाई नहीं होती, क्योंकि इस्लाम के भी बहुत इंटरप्रिटेशंस हैं और उसमें कुछ मौलाना एक इंटरप्रिटेशन को लेकर किसी गलत बात पर पकड़े रहते हैं और फिर उससे पूरी बदनामी स्टूडियो में भी होती है और उसका प्रभाव देश के करोड़ों लोगों पर होता है। तीसरा जो हुआ है, मीडिया का एक नया भाग आया है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में एक आईटी सेल है, आप समझ जाइएगा कौन सा आईटी सेल है। उसने बहुत सारे फेक न्यूज़ फैक्ट्री बनाई है और फेक न्यूज़ के साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों ग्रुप बनाए हैं, याद रखिए, जो गलत इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्टेड तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। उसका एक एग्जांपल आपको दूंगा। 2013 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर दंगे करवाए गए और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुस्लिम दाढ़ी टोपी रखने वाले कुछ लोग दो नौजवानों को मार रहे हैं और नीचे कैप्शन था, मुजफ्फरनगर में मुसलमान हिंदू लड़कों को मार रहे हैं। जांच की गई तो पता चला वो वीडियो इंडिया का था ही नहीं, वो वीडियो था पाकिस्तान का। पाकिस्तान में दो चोर पकड़े गए थे और भीड़ उनको पीट कर मार रही थी, उसको इन्होंने मुजफ्फरनगर के नाम पर डाल दिया। तो ये फेक न्यूज़ का बाजार, ये भी बहुत तरह से नफरत फैलाता है। तो मुझे लगता है आज ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं जो सच्चाई को ईमानदारी से लोगों तक ले जाएं। इसके बहुत साधन उपलब्ध हैं जहां मैंने मीडिया की आलोचना की है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मीडिया का एक हिस्सा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें निश्चित रूप से मैं रवीश कुमार का नाम लूँगा। रवीश कुमार के साथ साथ ऐसे बहुत सारे और सोशल ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे स्क्रोल नाम का पोर्टल है, वायर नाम का पोर्टल है, इंग्लिश और हिंदी में, नवजीवन हिंदी में है, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में है, और हमारी मित्र तीस्ता सितलवाड़ का सबरंग.in नाम का न्यूज़लेटर है जो सही इन्फॉर्मेशन को लोगों तक ले जाता है। ऐसे ही प्रतीक सिन्हा ने ऑल्ट न्यूज़ के नाम से एक चालू किया है और इस ऑल्ट न्यूज़ में वो गलत खबरों का निराकरण करके उनको एक्सपोज करते हैं और सही बातों तक को लोगों तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपील ये करूंगा कि हम सतही लेवल पर न रहें, हम गहराई में जाने की कोशिश करें, हम ऐसे वॉलंटियर बने, क्योंकि हम दूसरों को दोष देते रहे उससे कोई फायदा नहीं होगा। मुद्दा ये है कि हम समाज की सोच को बदलने में क्या योगदान दे सकते हैं। आप क्या योगदान दे सकते हैं, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। सही बातों को चुनकर क्या हम इनको लोगों तक ले जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरा खुद का कहा जाए तो मेरे YouTube चैनल पर ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिनमें इसके मिथकों के खिलाफ सच्चाई को लाने की कोशिश है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं आनंद पटवर्धन की और दूसरी चीज़ें हैं। इन चीज़ों का समाज तक ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, केवल लोगों को दोष देकर काम नहीं होगा। और दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस के अंदर एक संवेदना पैदा करने के लिए जगह जगह कार्यशालाएं, जगह जगह लेक्चर, सेमिनार, पोस्टर, किताबें, इनके माध्यम से पुलिस के अंदर भी एक अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए एक संवेदना पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक ऐसा भारत बना सकें जिसका सपना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने देखा। हमें एक ऐसा भारत चाहिए, जैसे आज़ादी के आंदोलन में आप देखेंगे तो ये केवल एक धर्म के लोगों का नहीं था, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। और उसी प्रकार की परिस्थिति हमें फिर पैदा करनी है। हमें खुद को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ठीक है, मैं इसको एक ऑनलुकर, तमाशबीन की तरह नहीं देखूंगा, मैं इस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर इसकी सकारात्मक बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, हमारे पास बहुत मटेरियल है, बहुत सामग्री है। सूफी संत, भक्ति संत से लेकर आज़ादी के आंदोलन के सिद्धांत,
और बहुत सारी इतिहास की किताबें, बहुत सारी मेलजोल की किताबें हमारे पास मौजूद हैं, जिनके आधार पर हम इस मीडिया के बदले एक ईमानदार, निष्पक्ष, तार्किक मीडिया का निर्माण करके समाज की सोच को बदलेंगे और पुलिस के बीच में संवेदना लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस ईसीआर के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरा जय भारत। आज जिस टॉपिक पर मुझे बोलना है वो है डेमोक्रेसी एट हॉल्ट एंड अपोजिशन इज नोवेयर। तो डेमोक्रेसी ये हमारे कंट्री की एक सिग्नेचर गवर्निंग सिस्टम है। जब 1947 में हम आजाद हुए और 1950 में हमने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स जिन्हें हम कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उन्होंने हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी ये तय किया। क्योंकि उस टाइम चर्चा थी कि हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी लें या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लें, क्योंकि डेमोक्रेसी के अलावा दूसरा तो कोई चारा नहीं था, क्योंकि हम अभी अभी गुलामी से आजाद हुए थे। किसी भी दूसरे तरीके का गवर्नेंस चुनना यह गुलामी को चुनने जैसा था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी को जो अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल, तो ये लोगों के लिए, आजाद लोगों के लिए, एक नए देश के लिए गवर्नेंस चुनने की बारी थी। तो इसलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुनी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुनी तो संविधान ने इसके लिए प्रोविजन बनाया कि जो डेमोक्रेसी में सरकार चलेगी तो उसके 3 पिलर्स होंगे। एक होगा पार्लियामेंट, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसमें पार्लियामेंट में हम समझेंगे कि स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो भी आ गए। दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, गवर्नर और स्टेट का मंत्रिमंडल, और जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। तो ये 3 पिलर्स होंगे। उसके बाद एक नया अमेंडमेंट हमने लाया और डेमोक्रेसी जो 2 टायर हुआ करती थी हमारी, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसमें 3rd टायर हमने जोड़ा है पंचायत राज का। जिलों में जिला परिषद, शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल, या महानगर पालिका जहां है बड़े शहर वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, और जहां पर छोटे छोटे गांव है वहां पे विलेज पंचायत। और इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और ये सभी हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स हो गए। अब इनका काम क्या है? अब इनका काम यह है कि लोगों को किन चीजों की जरूरत है, उन जरूरत के हिसाब से कानून और पॉलिसीज बनाई जाए, उनको बेनिफिट्स पहुंचाए जाए, उनके लिए देश में क्या बेहतर होगा यह तय किया जाए। और यह करने के लिए हम पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत राज में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुन के भेजते हैं। चुन के भेजने का मतलब यह होता है कि अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से लोग वहां पहुंचे और वो हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें किन चीजों की जरूरत है, यह तय करें। एग्जीक्यूटिव में जो लोग हैं तो मंत्रिमंडल और दूसरे ऑफिसर्स। अब ऑफिसर्स और ये चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या फर्क है? तो फर्क यह है कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को हम हर 5 साल में चुनते हैं, यानी हर 5 साल बाद उनको एक एग्जामिनेशन देना होता है। लेकिन जो ऑफिसर्स है उनको सिर्फ एक ही बार एग्जाम देना है और उसके बाद कोई एग्जाम नहीं देना है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी जवाबदेही यहां की जनता के लिए है, लेकिन जो ऑफिसर्स है उनको कोई जवाबदेही जनता के लिए नहीं है। तो यह संविधान इनसे उम्मीद करती है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये अगर पंचायत राज सिस्टम है तो कम से कम महीने में 1 बार मिले,
अगर स्टेट और सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेचर है तो कम से कम 6 महीने में एक बार मिले, या अगर इमरजेंट कोई प्रोविजन आता है, इमरजेंट कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो ये जल्दी जल्दी मिलते रहे। अब मिलने कैसे? तो सेशंस में। अब सेशंस में अगर मिलते हैं, हाउस अगर आता है तो हाउस में चली हुई प्रोसीडिंग्स को किसी भी कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता, सवाल नहीं किया जा सकता। अब आज देश एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहा है, वो है कोरोना का पेंडेमिक। अब इस पेंडेमिक में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिले। हमारे लिए क्या जरूरी है, किस तरह से लॉकडाउन हो, लॉकडाउन में किस तरह की छूट हो, लॉकडाउन हो या ना हो, या दूसरे ही तरीके से हम कोरोना को भगा सकते हैं। देश में पेशेंट्स कहां ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनका क्या इलाज किया जाए, हॉस्पिटल्स की पोजीशन क्या है, वो कितने रेडी है, वहां किन चीजों की जरूरत है, इन सब पे चर्चा हो, हाउस में ओपनली चर्चा हो, सरकार वहां जवाब दे हमारे मेंबर्स को, और लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि हां, सरकार और हमारे मेंबर्स इस चीज को लेके सीरियस है। लेकिन हो क्या रहा है? 21 और 22 मार्च जब पहली बार हमने लॉकडाउन किया, तब से आज तक के पार्लियामेंट का कोई सेशन हुआ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़िए, किसी भी हाउस का कोई सेशन हुआ नहीं है। अगर कोई हाउस सेशन लेना चाहता है तो सरकार बचाए या सरकार गिरने दे, इस इशू के लिए है, जनता से रिलेटेड किसी इशू के लिए नहीं है। आप अपने अपने गांव में देखिए, अपने अपने शहरों में देखिए, क्या वहां की लोकल बॉडीज हाउस में वर्क कर रही है? तो इन सब का जवाब है ना। हमने पूरा का पूरा गवर्नेंस का सिस्टम हमारे एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया है। एग्जीक्यूटिव में भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें एक नेशनल लेवल पे बॉडी है, स्टेट लेवल पे बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी, और ये सारी बॉडीज रन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स, जिनका जनता से कोई जवाबदेही नहीं है, और जनता को क्या चाहिए ये उनको पता नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं पूरे देश में। कुछ जगह बहुत अच्छा काम चल रहा है, लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स की। अगर अच्छा काम कर रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स की, और हाउसेस में कोई नई पॉलिसी नहीं आ रही है, जनता के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा अगर मैसेज जा रहा है, मैं डर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आए कि लोग कहने लगे कि अगर एग्जीक्यूटिव इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत क्या है। और अगर ऐसा होता है तो यह डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हार होगी। यह वक्त है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक वेकअप कॉल लेने का, वरना जो डेमोक्रेसी हम चाहते हैं, जिस डेमोक्रेसी में हम आजादी से सांस लेते हैं, जिस डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल किए जा सकते हैं, वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और हम फिर से एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस यानी एरिस्टोक्रेसी की तरफ जाएंगे। जो पहले होता था जमींदार चलाते थे, राजे रजवाड़े चलाते थे, तो ये इसी तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये जमींदार और राजे रजवाड़ों के जैसे काम करेंगे, और सबसे बड़ा शिकार डेमोक्रेसी और इस मुल्क के लोग होंगे। अब डेमोक्रेसी की खूबसूरती यह है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार और खासतौर से एसआर बोम्मई के केस में समझाया था, कि इंडिया ये प्लूरल सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजनल सोसाइटी है, जिसमें अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा रहते हैं, और इनको जोड़ने की ताकत सिर्फ डेमोक्रेसी में। अब डेमोक्रेसी को अगर अच्छे से काम करना है तो एक अच्छी सरकार जो चुनी हुई हो, और एक मजबूत अपोजिशन जो चुना हुआ होने का बहुत जरूरी है। सरकार का रोल है पॉलिसी बनाना, और अपोजिशन का रोल है उस पॉलिसी में जनता के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह पॉइंट आउट करना, और जनता के लिए सरकार से सवाल करना। यह अपोजिशन का रोल है। यह रोल नहीं हो सकता कि सरकार अपोजिशन से सवाल करे।
या अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश करें। आज पैंडेमिक सिचुएशन में देख रहे हैं कि सरकार एग्जीक्यूटिव चला रही है और अपोजिशन कहीं नहीं है। एक या दो नेता कुछ सवाल कर लेते हैं तो सरकार उन्हीं अपोजिशन के नेताओं से सरकार और मीडिया दोनों सवाल करने लग जाते हैं। यह बड़ी हास्यास्पद सिचुएशन हमने क्रिएट कर रखी है। फिर जो लोग सवाल कर सकते हैं वो आज कई सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रडार पे आ जाते हैं। या तो उनको सीबीआई सवाल करता है या ईडी सवाल करता है। अगर दिल्ली की बात करें तो वहां दंगों में जो रिपोर्ट कर रहे हैं वही आरोपी है। आज अलग अलग एफआईआर्स में सवाल करने वाले लोगों को ही आरोपी बनाया जा रहा है। और जो तीसरा पिलर है यानी जुडिशरी, जिनके पास हम गुहार लेके जाएंगे, तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चल रहा है। तो जो पेंडेमिक है इसमें अगर हम देखें तो सच्ची हालत में आज डेमोक्रेसी हमारी हॉल्ट पे आ चुकी है। और जो अपोजिशन है वो नदारद है, या तो वो किसी न किसी कस्टडी में है या जेल में है। ये देश के लिए बहुत बुरा वक्त है। जो मैंने कहा पहले कि इस पे आज ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वेकअप कॉल लेने की जरूरत है, वरना कल वो कहीं नहीं होंगे। लोगों को उनके बगैर जीने की आदत पड़ जाएगी। तो सोचिए, मेरी आज इस फोरम से आप सभी से यह विनती है कि अपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहें कि आप हाउस बुलाने की कोशिश कीजिए। यह जरूरी नहीं कि फिजिकल हो, वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन लोगों के सवालात डेमोक्रेटिक वे से डिस्कस होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो हम डेमोक्रेसी को खत्म किए जा रहे हैं और कल हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखिए, सरकार से सवाल कीजिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, तभी कोई रास्ते पर नहीं उतरेगा। इस देश में रहने वाले हर नागरिक की भलाई होगी और सभी को इंसाफ मिलेगा। फिर से एक बार ऑर्गेनाइजर्स को, खासतौर से एपीसीआर को धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय भारत।